Hello everyone, welcome to our channel. Today we are going to start a new chapter, The Lost Child. The Lost Child means होता है खोया हुआ बच्चा, which is written by Mulkraj Anand. Mulkraj Anand was one of the first Indian writers in the English language to make a mark on the international scenario. The Lost Child is a beautiful short story. It deals with a child's desires, parental love, and the realization of what truly matters. Let's see. It is the festival of spring. वसंत का त्योहार है. And a child goes to a village fair with his parents. एक बच्चा अपने माता पिता के साथ गांव के मेले में जाता है. He is happy and excited and wants the sweets and toys displayed there. Displayed means होता है प्रदर्शित होना या फिर दिखाई देना. वह खुश और उत्साहित था और खिलौने और मिठाइयाँ चाहते थे जो वहाँ पे प्रदर्शित हो रही थी या फिर जो वहाँ पे उसे दिखाई दे रही थी. But his parents don't buy them for him. लेकिन उसके माता पिता ने उनको उसके लिए नहीं खरीदा. Read what happened as the boy lingers over interesting sights. Lingers means होता है देर तक ठहरना. Interesting sights होता है दिलचस्प दृश्य या रोचक दृश्य. पढ़ो क्या हुआ कि जैसे ही बच्चे की नजरें रोचक दृश्यों पर ठहरी. It was the festival of spring. वसंत का त्योहार था. From the wintry shades of narrow lanes and alleys emerged a gaily clad humanity. Wintry shade. Wintry shades means होता है cold shades, ठंडी छाया. Narrow lanes. Narrow lanes means होता है path between buildings, जो बिल्डिंगों के बीच में रास्ता होता है. Alleys. Alleys means होता है streets, गलियां. Emerged होता है उभरा हुआ या फिर निकला हुआ. Galley. Galley means होता है आनंद से या खुशी से. Clad. Clad means होता है रंगीन कपड़े पहने हुए. Humanity. Humanity होता है a large crowd of people. लोगों की भीड़ या लोगों का समूह. सर्द छाया वाली संकरी गलियों से रंगीन कपड़े पहने हुए लोगों की भीड़ निकली. Some walked, some rode on horses, others sat, being carried in bamboo and blue carts. कुछ चल रहे थे, कुछ घोड़ों पर सवार थे और कुछ बांस और बैलगाड़ियों पर बैठकर जा रहे थे. One little boy ran between his father's legs, brimming over with life and laughter. Brimming over means होता है to be full of a strong emotion. किसी एक भावना से भरे हुए होना. छोटा बच्चा जीवन और खुशी से भरा हुआ अपने पिता के पैरों के बीच दौड़ रहा था. Come child come, called his parents. आओ बच्चे आओ, उसके माता पिता ने बुलाया. As he lagged behind. Lagged behind होता है पीछे छूट जाना. जैसे ही वह पीछे छूट गया. Fascinated by the toys in the shops that lined the way. Fascinated means होता है आकर्षित होना या फिर मोहित होना. रास्ते के किनारे सजी दुकानों में रखे हुए खिलौनों से मोहित होकर. He hurried towards his parents. वह जल्दी से अपने माता पिता की ओर दौड़ा. His feet obedient to their call. उसके पैर अपने माता पिता की आज्ञा को
मान रहे थे। His eyes still lingering on the receding toys. Lingering means होता है स्टक होना या फिर चिपके रहना। रिसीडिंग होता है पीछे जाना। उसकी आंखें अभी भी दूर होते हुए खिलौनों पर चिपकी हुई थी या फिर दूर होते हुए खिलौनों पर टिकी हुई थी। As he came to where they had stopped to wait for him. जब वह वहां पहुंचा जहां वे उसके इंतजार में रुके हुए थे, he could not suppress the desire of his heart. Suppress means होता है दबाना और desire means होता है इच्छा। वह अपने दिल की इच्छा को नहीं दबा सका। Even though he well knew the old cold stare of refusal in their eyes. Refusal होता है इनकार करना और stare means होता है घूरना। वह उनकी आंखों के पुराने ठंडे इनकार को अच्छी तरह से जानता था। I want that toy, he pleaded. Pleaded means होता है रिक्वेस्ट करना या विनती करना। उसने विनती की, मुझे वह खिलौना चाहिए। His father looked at him, red-eyed, in his familiar tyrant's way. Tyrants means होता है अत्याचारी। उसके पिता ने उसे लाल आंखों से अपने अत्याचारी अंदाज में देखा। अत्याचारी मीन्स टायरेंट मीन्स वैसे अत्याचारी होता है, लेकिन फादर के लिए अत्याचारी वर्ड्स हम यूज नहीं करेंगे। गुस्से वाला, जब कोई इंसान गुस्से में होता है तो उसकी आंखें लाल होती है, तो उन्होंने गुस्से वाले अंदाज में देखा। His mother, melted by the free spirit of the day, was tender and giving him her finger to hold. मेल्टेड मीन्स होता है पिघलना। स्पिरिट ऑफ डे यानी कि उस दिन की फ्री स्पिरिट होता है, उस दिन की जो आज़ादी थी यानी कि जो खुशनुमा माहौल था। उसकी माता उस दिन के खुशनुमा माहौल से पिघल गई थी। एंड गिविंग हिम हर फिंगर्स टू होल्ड, और उसको अपनी उंगली पकड़ाते हुए सैड बोली, लुक चाइल्ड, बच्चे देखो, व्हाट इज बिफोर यू, तुम्हारे सामने ये सब क्या है। इट वॉज अ फ्लोवरिंग मस्टर्ड फील्ड, यह एक सरसों के फूलों वाला खेत था। पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड, और पिघलते हुए सोने के जैसा पीला था। पेल मीन्स पीला होता है, मेल्टिंग मीन्स होता है पिघलना, गोल्ड सोना, तो वह पिघलते हुए सोने के जैसा पीला था। As it swept across miles and miles of even land. Swept means होता है फैला हुआ। Miles and miles, even land, even land means होता है समतल, जो मीलों तक फैली हुई समतल भूमि पर फैला था। A group of dragonflies were bustling about on their gaudy purple wings. A group of dragonflies, dragonflies एक तरह की मक्खियों को हम ड्रैगन बोलते हैं, तो ड्रैगन फ्लाइज का एक ग्रुप या समूह। बस्टलिंग होता है हलचल। अबाउट ऑन देयर, गोडी, गोडी मीन्स होता है चमकीला या सुंदर। पर्पल बैंगनी, और विंग्स पंख, बैंगनी पंखों वाला एक ड्रैगन फ्लाइज का समूह। Intercepting the flight of a lone black bee or butterfly in search of sweetness from the flowers. समूह फूलों की मिठास की तलाश में एक अकेली काली मक्खी या तितली को उड़ान को रोकने में व्यस्त था या बिजी था। The child
followed them in the air with his gaze. बच्चा, गेज मीन्स होता है घूरना या टकटकी लगाकर देखना। बच्चा घूरते हुए उनका पीछा कर रहा था। Till one of them would still its wings and rest, and he would try to catch. उनमें से जब कोई अपने पंखों को आराम देता या रुकता तो वह उनको पकड़ने की कोशिश करता। But it would go flapping up into the air when he had almost caught it in his hands. लेकिन जब वे लगभग उसकी मुट्ठी में या उसके हाथों में पकड़ चुका होता तो वह फड़फड़ाते हुए ऊपर उड़ जाते। Then his mother gave a cautionary call. Cautionary call होती है चेतावनी भरी, कॉल पुकारना। उसकी माँ ने चेतावनी भरी आवाज में बुलाया, कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे आओ, कम ऑन टू द फुटपाथ, फुटपाथ पर आओ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।